آج انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کس طرح آپ ایک دن میں جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ سورہ مزمل روحانی عملیات کورس سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج کی یہ ویڈیو ہے، ویڈیو نمبر 5۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک دن میں جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے کلام کی برکت یہ ہے کہ ایک دن میں بھی جادو کا توڑ کرنا ممکن ہے۔ ویسے آپ کو عملیات بتائے ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، اور عامل حضرات کو عملیات کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 دن کے اندر جادو کا توڑ، 90 دنوں کے اندر جادو کا توڑ، 21 دنوں میں جادو کا توڑ، 11 دنوں میں جادو کا توڑ، 3 دنوں میں جادو کا توڑ۔ بہرحال بعض اوقات تو ایک سال بھی لگ جاتا ہے جادو کے توڑ میں، لیکن جادو کا توڑ نہیں ہو پاتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک دن میں جادو کا توڑ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل ممکن ہے کہ ایک دن میں جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ، ایک دن میں جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ اب ایک دن میں جادو کا توڑ کس طرح کیا جائے گا، کیسے ممکن ہے؟ آج انشاءاللہ تعالی وظیفہ بتاؤں گا، عمل بتاؤں گا۔ اس عمل کے 2-3 طریقہ کار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک طریقہ کار بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی اگلا طریقہ کار اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج کے اس عمل کے ذریعے سے آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، اور اس ہی عمل سے کسی اور کے اوپر جادو الٹ کر سکتے ہیں۔ کسی اور سے مراد جادوگر، جو آپ پر جادو کرتا ہے، سحر کرتا ہے، اسی کا جادو اس پر الٹ کرنا چاہیں تو یہ عمل اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جادو الٹ کرنے کے لیے تھوڑی ترتیب مختلف ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ وہ فرق آج کی اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ممکن ہے کہ جادو کا توڑ ایک دن میں کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سورہ مزمل شریف کے عامل ہوں، اور آپ نے عمل کبیر کیا ہوا ہو، بڑا عمل کیا ہوا ہو، اور آپ پکے عامل ہوں، آپ کو اندازہ ہو، آپ کو یقین ہو، تو الحمدللہ یہ عمل کام کرتا ہے۔ عام آدمی جس نے ایک دن کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، 3 دن کی زکوٰۃ کی ہوگی، 11 دن کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اس کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اس سے ایک دن میں جادو کا توڑ نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک دن کا عمل کیا، 3 دن کا کیا، 11 دن کا کیا، یا 40 دن یا 21 دن کا عمل کیا ہوگا، تو جادو کا توڑ تو اس میں بھی ممکن ہے، لیکن اس پہ ٹائم ہوگا، ٹائم لگے گا۔ 3 دن میں جادو کا توڑ ہو، 7 دن میں ہو، 11 دن میں ہو، 21 دنوں میں ہو، 41 دنوں میں ہو، یعنی ٹائم لگتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ جادو کا توڑ کروں اور ایک ہی دن میں جادو کا توڑ ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمل کبیر کے آپ عامل بن جائیں، پھر انشاءاللہ تعالی ممکن ہے ایک دن کے اندر آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ عمل کبیر کی ترتیب اور طریقہ کار میں نے سورہ مزمل روحانی عملیات کورس کے سلسلے میں پہلی ویڈیو جو بیان کی تھی، اس پہلی ویڈیو میں وہ مکمل عمل بیان کیا ہے۔ آپ نے وہ عمل کر لیا ہے تو الحمدللہ یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ ایک دن میں جادو کا توڑ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ عمل نہیں کیا، چھوٹے اعمال کیے، پھر بھی آپ عمل کریں، پھر بھی عمل کریں، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہ ہو، فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے اعمال کیے ہیں تو 7 دن لگ سکتے ہیں، 3 دن لگ سکتے ہیں، 11 دن لگ سکتے ہیں۔ عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عمل بیان کرتا ہوں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ ہو، اور ایک چھری ہو آپ کے پاس، اور ایک مٹھی آپ کے پاس چاول موجود ہوں۔ پانی کا پیالہ آپ کے پاس ہو، اور ایک چھری آپ کے پاس موجود ہو، اور ایک مٹھی آپ کے پاس چاول موجود ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ آیت الکرسی کو پڑھیں گے 7 بار، اور اس چھری پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ये सूरह फील है। इस सूरह फील को, सूरह मुबारका को 41 बार पढ़ना है और 41 बार पढ़कर चावलों पर दम करेंगे। आपने 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर आपने छुरी पर दम किया और 41 बार सूरह फील पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर आप चावलों पर दम करेंगे। ये वजाहत कर दी है। बाद में आप पूछते हैं कि कारी साहब दुरूद शरीफ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। उसके बाद ये छुरी अपने दाएं हाथ में लें और मरीज का तसव्वुर करें जिसका आप जादू का तोड़ करना चाहते हैं। वो मरीज आपके सामने है तब भी ठीक है, मरीज आपके सामने नहीं है तब भी ठीक है। आप पूछते हैं कि कारी साहब मरीज सामने हो तो हम रूहानी इलाज करते हैं, जादू का तोड़, जिन्नात का, नजर बद का, कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मरीज सामने ना हो तब भी हम जादू का तोड़ कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के ज़रिए से आप ऐसे शख्स का भी तोड़ कर सकते हैं जो आपके सामने हाजिर ना हो। आपने छुरी तैयार कर ली, उस पर 7 बार आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा और सूरह फील पढ़ी आपने 41 बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर आपने चावलों पर दम किया। अपने दाएं हाथ में आपने छुरी ले ली और मरीज का तसव्वुर किया, नाम और वालदा का नाम आपने जहन में रखा और अल्लाह ताला से मदद तलब की कि अल्लाह फ़िला शख्स पर जो जादू का, सहर का, तावीज़ात का असर है, अपने कलाम की बरकत से इसको ख़त्म फरमा, मेरी मदद फरमा। ये कहते हुए, ये ख्याल करते हुए, दुआ करते हुए, नियत करते हुए आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ेंगे 11 बार। शुरू में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ जैसे आप पढ़ेंगे, सूरह मुज़म्मिल शरीफ जैसे मुकम्मल होगी तो उसके बाद 3 बार पानी को काटना है। जैसे किसी चीज़ को काटते हैं इस तरह पानी को काटना है छुरी के साथ। फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर काटेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर काटेंगे। ये अमल 11 बार होगा। जैसे आपका अमल 11 बार मुकम्मल हो जाए फिर पानी पर दम करें। पानी पर आपने दम कर लिया, ये अल्हम्दुलिल्लाह अमल मुकम्मल हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पानी पर दम किया और ये जो आपके पास चावल हैं अपने हाथ में उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर अपने सामने की तरफ जोर से फेंकने हैं आपको। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, उसके बाद चावल अपने बिल्कुल सामने की तरफ आपको फेंकने हैं। चावल आपने फेंक दिए, फिर छुरी को कहीं पर भी ज़मीन में दफना दें, पानी को कहीं साइड में डाल दें, पाक साफ जगह पर डालें, बागीचे में डालें, दरिया में, समंदर में, नहर में डाल दें। बहरहाल नापाक जगह पर पानी को नहीं डालना। छुरी भी आप दफन कर देंगे और चावलों को अपने सामने की तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर ज़ोर से फेंकेंगे और पानी को कहीं पाक साफ जगह पर आप डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मुकम्मल हुआ। इस अमल की बरकत से फ़ौरन जादू का तोड़ हो जाता है। मरीज़ उस ही वक़्त अपने आप को आज़ाद महसूस करता है और उसको मुकम्मल तौर पर शिफा हासिल होती है। फिर मरीज़ को आप कहें कि वो गुस्ल कर ले, नए कपड़े पहन ले, खुशबू लगा ले और कुछ शीरीनी या कुछ मिठाई छोटे बच्चों में तकसीम कर ले। ये अमल सिर्फ एक बार करने का है। एक बार ये अमल आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इस अमल के लिए आमिल हजरात इस अमल को करें। कोई गैर आमिल हो, जो आमिल ना हो, वो भी इस अमल को कर सकता है। और जिसने छोटी ज़कात अदा की है, 1 दिन की, 3 दिन की, 11 दिन की, वो शख्स भी इस अमल को कर सकता है। लेकिन वो शख्स अमल को कसरत से करे। आपने 1 दिन की सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा की है तो आप इस अमल को कम से कम 11 दिन करें, 7 दिन करें, 3 दिन करें। पहली बार करने में आपको थोड़ी मुश्किल होती है अंदाज़ा करने में कि जादू कितने दिनों में कट जाता है। मान लें कि आपने 11 दिन का अमल किया है सूरह मुज़म्मिल शरीफ का, तो आप ये करेंगे कि 11 दिन तक ये अमल रोज़ाना दोहराते रहें।
तो 11 दिन में इंशाअल्लाह ताला जादू का तोड़ हो जाएगा। किसी मरीज का आप 7 दिनों में करके देखें, जब आपको अंदाज़ा हो जाए, तजुर्बा हो जाए मेरा अमल इतने दिनों में काम करता है, तो उतने दिन ये अमल करते रहें। यहाँ 1-2 बातें ज़रूरी आपके सामने रखता हूँ, फिर आप बाद में सवाल करते हैं। पहली बात यह है कि छुरी जो है इस्तेमाल शुदा ना हो, बिल्कुल नई छुरी लेनी है, न्यू छुरी लेनी है, इस्तेमाल शुदा ना हो। दूसरी बात ये आप पूछेंगे क्या हर बार अमल के लिए नई छुरी लेनी होगी या इसी छुरी को इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब यह है कि एक शख्स के लिए एक छुरी का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आप 11 दिन का अमल करेंगे तो पहले दिन आप नई छुरी ले लें और उसके बाद इस छुरी को दफन न करें। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह 11 दिन आप ये अमल करें, 11वें दिन छुरी को दफन कर दें। और चावलों के हवाले से माशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, पूछते हैं चावल कौन से होने चाहिए। कोई पूछेगा सेला चावल हो, कोई पूछेगा कर्नल हो, कोई बासमती हो, कोई भी चावल हो भाई, साबुत चावल हो, पौने चावल हो, टोटे हो, कोई अच्छी क्वालिटी के हो, कोई लोकल क्वालिटी के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं। एक और सवाल होगा, क्या ये अमल ख़वातीन कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ख़वातीन भी कर सकती हैं। अमल को करें, खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाएँ और मेरे हक़ में भी दुआ करें। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस अमल में और दीगर आमाल में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको रूहानियत में वो मकाम व मर्तबा अता फरमाए जिसके बाद कोई ज़वाल ना हो, आमीन। आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और सूरह मुज़म्मिल का ये कोर्स समझने के लिए ज़रूरी यह है कि रूहानी अमलियात कोर्स के नाम पर मैंने एक कंप्लीट कोर्स पहले भी अपलोड किया है, उसमें 30 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, मुकम्मल कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। उस कोर्स को एक बार ज़रूर देखें। जब तक वो कोर्स आप नहीं देखेंगे तब तक ये कोर्स आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत सी बातें इस कोर्स में नहीं की हैं, वो उस कोर्स में कर ली हैं। उनको सुनेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी वो बातें आपको समझ में आएंगी। और उस कोर्स को सुनने के बाद, समझने के बाद आपके जहन में बहुत से सवालात आएंगे तो आप वजाहत भी तलब कर सकते हैं। यूँ रूहानियत को समझना या अमलियात को समझना आसान होगा आपके लिए, इलाज व मुआलजा करना बहुत आसान होगा। एक बिल्कुल आखिरी बात कि मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि व्हाट्सएप पर रब्ता करें। व्हाट्सएप पर रूहानी इलाज के हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं या कि मेरे पेड कोर्सेज़ के हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं। वज़ाइफ की इजाज़त के लिए आप व्हाट्सएप पर हरगिज़ रब्ता ना करें, व्हाट्सएप पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त के लिए यूट्यूब पर कमेंट्स कर लिखें, इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा और दिया जाता है। तो ये बात आपको बार बार वाज़ेह कर दी है। अक्सर आप हज़रात नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ ना हुआ करें, मेरी मसरूफ़ियत और मेरी मजबूरी को भी समझा करें। एक बार फिर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको रूहानियत में वो मकाम व मर्तबा अता फरमाए जिसके बाद कोई ज़वाल ना हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।